हाँ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅੱਜ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਗਰਮ ਕੀਤੀਆਂ ਗਰਾਈ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਵੜਦੇ ਨੇ, ਸਾਜੀ ਠੰਡੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਜੇਠ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਸਮਾਨ ਵੜਦਾ। अच्छा जी। ਆਹੋ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਛੇ ਉਸਤਾਦ ਵੱਡੇ ਜੇਠ ਡਾਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਕਹੇਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ठंडी शहर जेठ च कबूतर गराई ਕਬੂਤਰ च ਠੰਡੀ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਗਰਾਈ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਜੇਠ 'ਚ। ना करो उस्ताद जी। ਉਹ ਭਾਈ ਗਰਮ ਨਾਲ ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਅੱਗੇ ਹੀ ਪੱਟ ਨਾਲ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਕੁੰਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਅੱਛਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਤੂੰ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦਾ, ਸੁਣਦਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਵੀ ਸੁਣਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਗਰਮ ਸ਼ੈ ਸੈੱਟ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਠੰਡੀ ਰੱਖਦੀ? ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਤੂੰ ਬੜੇ ਇੰਟਰਵਿਊ करदा। अगर हाजमे नु अच्छा रखना है ना, थोड़ी बहुत ही ठंडी चीज देनी पड़ेगी। जिदों तू गरम देगा ਉਹਦਾ ਹਾਜ਼ਮਾ ਉੱਥੇ ਡੱਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, तलख हो जाएगा। ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੂੰ ਖਾਧੀ ਏ ਮਸਾ ਕੇ ਪੁਦੀਨੇ ਦੀ ਚਟਨੀ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਕੱਚੀ ਲੱਸੀ ਪੀਤੀ, ਤੂੰ ਹੈਪੀ ਲਗਾ ਫਿਰਨਾ, ਤੇਰੀ ਵੇਲੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਹਜ਼ਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਤੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਗੋਸ਼ਤ ਖਾ ਲਈ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨੁਕਰਾਂ ਹੀ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰੇਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ ਹੂੰ। हाँ ਗਰਮ ਸ਼ੈ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਅੰਦਰ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ, ਸਿਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਖੂਨ ਪਤਲਾ ਹੁੰਦਾ ਬਸ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਗਰਮ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਕਿਉਂ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਸਤਾਦ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, 7-8 ਵਜੇ ਖੁਰਾਕ ਖਰੂਕ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਜ਼ਮ ना ਕਰਕੇ ब्लड ब्लड तेज है। 10-11 ਵਜੇ ਜਾ ਕੇ ਗਰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ हाँ ਕਿ ਭਾਈ ਐਵੇਂ ਇੱਕ ਅੱਧੀ ਗੋਲੀ ਰਹਿ ਗਈ, ਹੁਣ ਗਰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਰਾਤ ਕੱਢ ਜਾਏਗਾ। हाँ ਤੇ ਬਹਰਹਾਲ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜੀ ਲੰਮੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਏ। हाँ। ਐਵੇਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੋਈ ਤਨਕੀਦ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। लेकिन उस्ताद जी है वाकई मैनू भी समझ नहीं आई, ठंडी शहर ना कबूतर समान बढ़ता। ਬਸ ਛੱਡ ਦੇ, ਬਹਿਸ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਰਨੀ। ਭਾਈ ਤੂੰ ਨਾ ਠੰਡਾ ਕਰੀ ਕਬੂਤਰ ਜੇਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇਈ ਤੇ ਵੇਖੀ ਕਿੰਨੇ ਗਰਮ ਗੋਲੀਆਂ ਦੇਈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਦੇਈ, ਠੰਡਾ ਨਾ ਕਰੀ ਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ नहीं ਲੈ। मेरी गल सुनो, ओड़ा सुबह टाइम ना अगले दिन देना, वो तो थोड़ा बहुत ठंडा करना ही है। ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਸਮਾਨ ਲੈ ਜਾਣਾ उन्हें लेके जाना। ਭਾਈ। ਕਬੂਤਰ ਫਰੈਸ਼ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਕਰੇਗਾ ਨਾ। हाँ ਇਹ ਗੱਲ करो ना। ਜੇ ਤੂੰ ਠੰਡਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਗਰਮ ਕਰਤਾ, ਉਹ ਤੇ ਰਾਤ ਸਾਰੀ ਬਲ ਕੇ ਬਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਨ ਚਲੇਗਾ, ਉਹ ਚਮਕਾ ਜਿਹਾ ਖਲੋ ਜਾਏਗਾ, ਧੁੱਪਾਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਹੁਣ ਪਤਾ ਕੀ ਗੱਲ ਏ, ਸਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਦੋਸਤਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੋ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲੌਜਿਕ ਦੱਸਣ ਦੇ अपना लो जी बस। ਇੱਕ ਦੋ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬਸ ਗਾਹਕ ਨੇ। पी ਬੜਾ नहीं ज्यादा चल रहा। ਬੜਾ ਨਸਲੀ ਹੋਏਗਾ ਵਿਚਾਰਾ, ਟਾਈਮ ਛੋਟਾ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਈ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਮ ਸੇ ਕਮ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। अभी दरमियाना ही है। ਦਰਮਿਆਨਾ ਸਾਈਜ਼ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ। 12 ਇੰਚ ਦਾ ਕਬੂਤਰ, 13 ਇੰਚ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਬਰੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵੱਡੇ ਵਜੂਦ ਦਾ। हाँ 9 ਤੋਂ 10 ਇੰਚ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, 10 9 10 ਐਲੋਰ ਚ ਬਹੁਤ ਕਾਮਯਾਬ। सच। ਉਹ ਪਾਰੇਗਾ 7 ਵਜੇ ਵਾਲਾ। अच्छा ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਾਰੇ ਚ ਗੋਲ ਹੋਣਗੇ ਮੇਰੀਆਂ ਉਂਗਲਾਂ ਵਰਗੇ, ਉਹ ਸਮਾਨ ਜਾਣਗੇ 2 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਨੰਗੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਵੇਚਣ 12-1 ਵਜੇ 2 ਵਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁਲਾਈ ਵਾਲਾ ਬਰੀਕ ਪਰ ਪਾਵੀ ਜਾਂ ਉਹ ਰਹਿਣਗੇ ਫਿਰਦੇ ਹਿੱਟਾਂ ਮਾਰਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਹਿਣਗੇ ਪਿਛਲੇ ਟਾਈਮ। लो जी दोस्तों, उस्ताद तारा गुजर फन नहीं दे रहा, ही कढ़ाता है फन। ਨਹੀਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ना 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 पहले भी दस नहीं सी दे, हुन कढ़ा ली ते असि। ਮੈਂ ਇੱਕ ਜੋੜਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਹੋਰ ਇੱਕ ਟਿਪ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾ ਤੂੰ ਬਰੀਡਿੰਗ। ਇੱਕ ਅੱਖ ਲੈਣੀ ਤੂੰ ਪਲੇਨ ਚਿੱਟੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਟੈਡੀ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਹੋਵੇ, ਖਾ ਕੋਈ ਨਸਲ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਲੇਨ ਚਿੱਟੀ ਅੱਖ ਲੈਣੀ। ਦੂਜੀ ਅੱਖ ਡਲੀਆਂ ਵਾਲੀ ਲੈਣੀ, जरेदार ਜਿਹਦੇ ਮੋਟੇ ਰਿੰਗ ਹੋਣ, ਮਸਾਂ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਡਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ, ਗੂੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੰਝ ਵੇਖੋ ਤੇ ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਪੈਂਜੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਆ, ਜਾਲੀਆਂ ਨੇ ਮੋਟੀਆਂ। ਇਹ ਜੋੜਾ ਲਾ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਫੇਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ। सही कह रहे, सही कह रहे, ਇੰਤਹਾ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ੀ ਹੋਏਗਾ। सही कह रहे। हाँ। ਬ੍ਰੈਟਨੈਸ ਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਲੇਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰਾਤ ਉੱਡ ਗਏ ਨੇ, ਫਰਕ ਹੋ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਜ਼ਰਾਤ ਪਾੜੇਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਚਮਕ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਕਲ ਵੀ ਆਏਗੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰਵਾਜ਼ ਵੀ ਆਏਗੀ। दुम दी खेड दसो सानू। ਦੁਮ ਭਾਣ 14 ਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਮ 16 ਪਰੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਮ ਲੱਕੇ ਵਰਗੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਹੋਵੇ ਚੱਕੀ ਬਰੀ, ਗੰਢ ਨਾ ਮੋਟੀ ਹੋਵੇ। अच्छा ਜਦੋਂ ਗੰਢ ਮੋਟੀ ਹੈਗੀ, ਇਹਨ ਬਰੀਡ ਕਬੂਤਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਚਪਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 16 ਪਰੀਏ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। हाँ 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 ले भी ने। ਸ਼ਾਰਕੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਮੋਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ।
ਉਹ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮ ਵੇਲੇ ਵੇਖਣੇ ਚ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉੱਥੋਂ ਲੱਕਾ ਲਗਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਤੇ ਕੀ ਭਾਈ- ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਚ ਬਰੀਕ ਹੈ? ਉਹ ਅਸਲ ਕਬੂਤਰ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕਰਾਸ ਕਰੂਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਾਰਦੇ, ਕੀਮ ਆਪਣੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਖਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦੇ। ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਰਾਸ ਮਾਰੇ ਤੇ ਉਹ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਫਿਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ। ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੈਂ ਮੰਨਣਾ ਬਰੀਕ ਦੁਮ ਹੈ, ਦੋ ਇੱਕ ਇੰਚ ਦੀ ਛੋਟੀ ਦੁਮ, ਛੋਟੀ ਦੁਮ ਇਹ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਨਹਾਇਤ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਆ। ਐਡੀ ਐਵੇਂ ਹੈ, ਇਹ 5 ਇੰਚ ਦੀ ਦੁਮ ਹੋਵੇ, 5 ਇੰਚ ਦੀ ਤੇ 3 ਪੱਤਾ ਦੁਮ ਹੋਵੇ ਇੰਜ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਨੇਰੀ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡੇਗਾ ਤੇ ਗਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡੇਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਦੁਮ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਇੰਜ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਗੁਬਾਰਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਹਵਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਚ ਜਾਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਜ਼ਬੈਰੀ ਤੋਂ ਬੜਾ ਬਚਾਉਂਦੀ ਛੋਟੀ ਦੁਮ। ਯਾਰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਉਹ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਤਿੰਨ ਪਰੀ ਦੁਮ ਚਪਟੀ ਬਾਜ਼ਬੈਰੀ। ਇੱਕ ਦੇ ਕਾਬੂ ਪਤਾ ਕਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਆਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੀ ਐਡੀ ਦੁਮ ਹੁੰਦੀ ਏ ਤੇ ਕੁੱਪ ਵਾਂਗੂ ਉੜਦਾ ਐ ਗੋਲ ਪੋਲਾ। ਉਹ ਉਹਦੀਆਂ ਬਗਲਾਂ ਵੱਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੁਮ ਵੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਕੁੱਪ ਬਣ ਕੇ ਉੜਦਾ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਐਂਡੇ ਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਾਜ਼ਬੈਰੀ ਦਾ। ਇਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 3-4 ਪਰ ਨੇ ਨਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ, ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਨੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਅਰਬੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਜਿਸ ਕਬੂਤਰ ਦੇ 3-20 ਬਾਰ ਦੇ ਪਰਾ ਜੇ ਬਣਦੇ ਹੋਣ 20, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਗੁੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹਨੇਰੇ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐਕੋਰੇਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਨੀ ਕੁਰਾਨੀ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲ ਕਬੂਤਰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਇਹ ਹਕੀਕਤ 'ਚ ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਵਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੇ 20 ਬਣ ਜੇ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਕਸਰ ਕਬੂਤਰ ਜੋ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਜੋ ਬੈਨ ਤੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਐਂਡ ਦੇ ਪਾਰੇ 'ਚ 20 ਬਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਇਹ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਸ ਹੋਣੀ, ਕਬੂਤਰ को बैठा, ਇਹ ਬਗਲਾ ਜੋ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਾਸ ਹੋਣੀ, ਕਬੂਤਰ को बैठा नहीं जाना। ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੀ ਬਗਲ ਦੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ ਉਹ ਇੰਜ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇੰਜ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਗਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਇਹ 20 ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੁੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰ ਆਮਟੋਰ ਦੀ ਛੱਤ ਤੇ ਗਏ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਉੱਤੋਂ ਆਏਗਾ ਗੁੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬਹਿਵੇਗਾ, ਉਹਨੇ ਕਹੀ ਬਿਆ ਬੈਠ ਜੀ ਬਹਿੰਦਾ। ਭਾਈ ਉਹ ਐਡੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਬਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਦੂਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਉਸਤਾਜ਼ਾ ਕਰਾਮ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਜੋ ਖੋਲਨੇ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਇਹ ਖਰਾਬੀ ਆ। ਹਲੇ ਵੀ ਆਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਹਕੀਕਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਖਰਾਬੀ ਹੈ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਦੇ 4 ਪਰ ਤੇ ਦੁਮ ਨੂੰ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਕਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਬਹਿੰਦਾ ਵੇਖੀ ਦੁਮ ਇੰਜ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਖੋਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਬੈਠੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਗਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਰ, ਬਗਲ ਤੇ ਪਹਿਲੇ 5 ਪਰ, ਇੰਨਾ ਚ ਕਬੂਤਰ ਬਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਮਾ ਪੁੱਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਨੇ, ਕਟੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਆਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਤੇ ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਉੱਡਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਖੇਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਦੁਮ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਉਹ ਫਿਰ ਵੀ ਐਂਡ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੁੰਡੇ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਡਿਫੈਕਟ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜਦੋਂ ਉੱਤੋਂ ਆਏਗਾ ਨਾ, ਗੁੱਛੀ ਮਾਰ ਕੇ ਬੈਠੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਦਾਨ 'ਚ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋਂਦਾ, ਖਲੋਏਗਾ ਨਹੀਂ। ਸ਼ੂਟਰ ਹੀ ਭੱਜ ਆਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਦੁਮ ਤੇ ਬਗਲ ਦੇ ਪਰ ਆਪਸ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਪੈਰਾਸ਼ੂਟ ਬਣਦਾ, ਫਿਰ ਖਲੋਂਦਾ, ਫਿਰ ਹਵਾ 'ਚ ਤੈਰਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਨਾ ਜੇ ਦੁਮ ਕੱਢ ਦਿਓਗੇ ਨਾ, ਫਿਰ ਖਲੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਫਿਰ ਖਲੋਏਗਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦਾ, ਠੱਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ। ਹਾਂ, ਭੱਜਾਂ ਦਾ ਆਏਗਾ। ਕੁਛੀ ਨਾ ਵੀ ਮਾਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਭੱਜਾ ਆਏਗਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜੀ ਦੱਸਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਪਰ ਬਣੀਏ, ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢਦੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਪਰ ਬਣੀਏ, ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਖੁਰਾਕ ਦਈਏ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਘਟਾਏਗਾ, ਕਿੰਨੀ ਟਾਈਮ ਕੀ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਬੜੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਘੰਟੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਘਟਾ ਕੇ ਬਵੇ। ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਉਹ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪਰਾਂ 'ਚ ਬੰਨੀ ਦੇ ਨੇ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਕਿੰਨੇ? ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਪਹਿਲੇ 3-4 10 ਛੱਡ ਕੇ ਕਿੰਨੇ ਬੰਨੇ ਪਏ? ਭਾਈ ਉਹ ਪਰ ਬੰਨੀ ਦੇ ਨੇ 2-2 ਕਰਕੇ। ਉਹ ਗੁੱਛਾ ਬਣਾਈਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਗੁੱਤ ਨਹੀਂ ਬੰਨਦੀ ਬੁੱਢੀ, 3 ਤਨੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਨੀਆਂ ਬਣਾਈ। ਅਗਲੇ ਇੰਟਰਵਿਊ 'ਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛਾਂਗੇ। ਉਹ 3 ਕਬੂਤਰ ਫੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਵਹਾਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਈ ਉਸਤਾਦ ਅੱਜ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਦੇ 4-3 ਛੱਡੇ ਤੇ ਕੱਜ ਗੁੱਛਾ ਮਾਰ ਕੇ ਬੰਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਕੁੰਡੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ, ਜੁੱਟ ਕਰਕੇ ਬੰਨਣ ਦੀ।
सही गल है। ਉਹ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਘੰਟੇ ਬਰਬਾਦ ਲੈਣੀ ਉਹ ਫਿਰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬੰਦ ਦੇਈਦਾ ਕਬੂਤਰ। वाह जी वाह। इलम इलम। लो उस्ताद जी लास्ट में पैगाम दो मिठा है बड़ा मजेदार। बस मुहब्बत करो प्यार करो सब असी बरादरी भरा वा एक दूजे ਨੂੰ अच्छा जानो अच्छा इज्जत करो ते शौक करो मुहब्बत भरा अदावत ना रखो तंजबाजी ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ना करो ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੰਜ਼ਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਦੀਦ ਦਾ ਦੇਮਲਾ ਗਵਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ हार जीत कोई मैना। अभी तक शायद कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है कि जो कबूतर को पकड़ के ये बता दे कि कबूतर के अंदर इतने घंटे की उड़ान है। भाई कबूतर को उड़ा के ही पता चलता है असली है या नकली है। चैनल देखने वाले सभी भाइयों को प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जिस भाई ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो वो चैनल सब्सक्राइब कर ले और साथ में घंटी वाला बटन भी दबाए। दोस्तों एक हमारे भाई हैं मौसिम खान, तो उन्होंने बहुत प्यारा कमेंट करा है कि जी जोड़ा लगाने का सही तरीका बताओ। दोस्तों ऐसा है, देखो सबसे पहले अगर कहीं से भी आप कबूतर ले रहे हो, ठीक है जी, तो उसके बैकग्राउंड का होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि उसके बहन भाइयों का क्या रिकॉर्ड है, उसके माँ बाप का और जो उस खानदान का है क्या रिजल्ट है। सबसे पहले कबूतर के रिजल्ट का पता होना बहुत ज़रूरी है और इसी के साथ साथ फिर उसके बाद कबूतर के मिजाज का आपको पता होना बहुत ज़रूरी है कि आप बैठे हुए कबूतर को पता लगा सको ये कैसे मिजाज का है। दोस्तों कुछ कबूतर गर्म होते हैं, कुछ कबूतर होते हैं ठंडे मिजाज के, ठीक है जी। नू तो सभी कबूतर लगभग देखो खुली हड्डी के बंद हड्डी के होते हैं, ठीक है जी। कुछ भाई कहते हैं कि बंद हड्डी का कबूतर ज़्यादा उड़ता है, भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने अपने घर पे खुली हड्डी के कबूतर जिनके जोड़ इस तरीके से खुले हुए होते हैं, ये वाले मैंने शाम शाम तक उड़ाए हैं और बाजी भी जीत के आए हैं मेरे। ऐसा कुछ नहीं है भाई, ये तो नस्ल के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ ये होता है कि बंद हड्डी का कबूतर जो है लोग ज़्यादा पसंद करते हैं और जो दुम को बारीक रखेगा इस तरीके से तो वो बंद हड्डी का रखेगा ज़्यादातर। जितनी भी दुम को ये बंद रखेगा वो बंद हड्डी का रखेगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन अगर आपने जोड़ा लगाना है, बात आती है जोड़े की, जब आपने जोड़ा लगाना है तो उसमें किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। नर में क्या चीज़ें होनी चाहिए और मादिन में क्या चीज़ें होनी चाहिए, आज हम आपको क्लियर कर देंगे और वो तरीका बताएंगे जो हमारे उस्तादों ने हमें बताया है और हम जो है खुद लगाते हैं और रिजल्ट माशाल्लाह बिल्कुल 100% आता है, फुल रिजल्ट आता है। लेकिन उसमें भी जो है दो बातें आती हैं, एक जो जोड़ा लगाया जाता है वो घर के हिसाब का लगाया जाता है, तो उसमें आपने क्या देखना है उस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और एक जोड़ा लगाया जाता है कि बच्चे हमने बाहर उड़ाने हैं, बाहर कंपटीशनों में उड़ाने हैं, तो उसमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो दोनों ही तरीके हम आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो वीडियो थोड़ी दोस्तों लंबी हो सकती है, लेकिन वीडियो जो है आप जब देखेंगे तो आपको इंशाल्लाह बिल्कुल 101% जोड़ा लगाने का तरीका आ जाएगा। हमारे पास ये कबूतर है पुन्नू वाली ब्लड लाइन से, ये देखें जी इस कबूतर को। तो हमें इस नस्ल का पता है कि पुन्नू वाली में से है और ये हद से ज़्यादा गर्म भी होते हैं और उड़ान के भी होते हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि ये कौन सी नस्ल में का है, सिर्फ आपने कहीं से कबूतर ये उठा लिया और मिजाज का आपको पता लग गया कि जी ये जो है हमारा गर्म मिजाज का कबूतर है और जोड़ वोड़ भी इसके बंद हैं, तो इसमें आपने क्या देखना है, ये वाली हड्डी हमारी बिल्कुल ये जो सीने से जा रही है और ये पीछे जोड़ तक आ रही है दोस्तों। ये कुछ कबूतरों में गैप होता है 1 उंगली का इस वाली का, कुछ कबूतरों में गैप होता है कन की उंगली का, ये इससे बारीक है। और कुछ कबूतरों में जो है गैप इसका और इसका दोनों उंगलियों का इससे भी ज़्यादा होता है। लेकिन आपने कबूतर सेलेक्ट कौन सा करना है, चाहे जोड़ खुले हों या बंद हों, कोशिश करें कि सीने वाली हड्डी आपकी जोड़ों तक जा रही हो और जितना भी ज़्यादा कम गैप होगा दोस्तों कबूतर इतना ही अच्छा होगा, जो हमारा अपना तजुर्बा है। तो ये कबूतर की हड्डी बिल्कुल ये जोड़ों तक जा रही है और दोस्तों ये वाली उंगली जोड़ में नहीं जा रही, ये वाली उंगली जा रही है। और ये जो पीछे वाले जोड़ हैं, ये जो पीछे से साइडों से ये हड्डी होके आती हैं, तो ये यहाँ के बिल्कुल बंद है और बहुत ज़्यादा टाइट हार्ड है इस कबूतर का, ठीक है जी। तो इसलिए ये अच्छी वाली नस्ल में का है और ज़्यादा कैड़ा कबूतर है। तो इसमें आपने क्या देखना है, अगर हम इससे मादिन लगाएंगे तो वो भी हम बताएंगे आपको कौन सी मादिन कैसे काम करेगी इसके साथ। तो इसके परों का शौक करें दोस्तों, ये इसका पल्ला है जी। तो इसके जो पर हैं वो मीडियम है, ना ज़्यादा चौड़े हैं और ना ज़्यादा पतले हैं, ये मीडियम परों वाला कबूतर है। दोनों ही पल्लों का शौक करें, ये मीडियम इसके पल्ले हैं, ना चौड़े
ना बारीक। तो दोस्तों अगर हम इससे मादी लगाएंगे घर के हिसाब की तो बताते हैं। तो दोस्तों एक मादा ये है हमारे पास जो हम आपको प्रैक्टिकल करके बता रहे हैं। ये देखिए जी, ये भी वाइट आंख में है और मिजाज में ये भी काफ़ी गर्म है। अगर हम इस मादा को उस नर से लगाएंगे तो बच्चे उड़ेंगे हमारे घर के घर पे, बहुत ज़्यादा रिजल्ट देंगे। लेकिन अगर हम बाहर का छोड़ के बनाएंगे तो वो हमें धोखा दे सकते हैं, तो बाहर चांस कम रहेंगे रुकने के। और इसमें हमने क्या देखा है, जो हमने जोड़ा इससे नहीं लगाया, एक तो मिजाज काफ़ी गर्म है और मिजाज के साथ साथ इसके जो पर हैं दोस्तों, ये देखें जी, वो बारीक हैं काफ़ी, ठीक है जी, ये तलवार वाले पर हैं। तो इस बात का आपने ध्यान करना है कि आपने अगर गर्म से गर्म मिजाज मिलाओगे, ठीक है जी, तो फिर बच्चे आपके बाहर कम रुकेंगे। लेकिन आप घर के घर पे जोड़ा लगा सकते हो। जो इसके सीने वाली हड्डी है वो दोस्तों जोड़ों तक आ रही है और इसमें ये जो हमारी शाहजत उंगली बोल देते हैं, मोटी उंगली, इसका गैप आ रहा है इसमें, और जोड़ इसके काफ़ी दोस्तों बंद है। ये भी बहुत ज़्यादा कैड़े हार्ट की कबूतरी है और गर्म मिजाज की है, इसलिए हम उसको जो है उसके साथ नहीं लगा सकते। और अगर घर पे उड़ाएंगे तो हम इसको उसके साथ लगा सकते हैं, ठीक है जी। और अगर हमने बच्चे बाहर उड़ाने हैं तो हमने किस टाइप की उससे मादा लगानी है तो वो भी आपको हम दिखाते हैं एक बार। दोस्तों एक मादा ये है, ठीक है जी, इसमें हम बताएंगे आपको। तो ये मादा हमारी पुच्चो वाली नस्ल में से है। इस भाई को कोई भी देख के बता सकता है इस नस्ल को पुच्चो वाली नस्ल में से। हमें पता है ये पुच्चो वाले कबूतर जो होते हैं वो ठंडे मिजाज के होते हैं, लेकिन कबूतर को जो है बैठ के देख के बताने का भी तजुर्बा बहुत ज़रूरी है कि इसका मिजाज कैसा है, तभी आप 100% जोड़ा लगाओगे। और इसमें क्या करना है, हमने अगर हमने बच्चे बाहर छोड़ने हैं तो हम इस वाली मादा को उस नर से लगाएंगे, 100% इसका रिजल्ट आएगा। लेकिन थोड़ी सी उड़ान में कमी आ जाएगी, जैसे सपोज करो 1 से 2 घंटे की उड़ान कम हो जाएगी घर के हिसाब से, लेकिन बाहर पूरा काम करेंगे। तो इसके जो है जो ये हड्डी है दोस्तों, ये जो हड्डी सीने वाली जा रही है और जोड़ तक, ये जोड़ देखें बहुत खुले हुए जोड़ हैं इसके, और ये वाली उंगली का गैप है जोड़ के बीच में, इस तरीके के जोड़ हैं इसके, इस मादा के जोड़ खुले हुए हैं। और जो ये सीने वाली हड्डी है इसमें भी जो है 1 उंगली का गैप आ रहा है। और दूसरी बात, इसके जो पर हैं दोस्तों, ये देखें जी कितने चौड़े पर हैं उस नर के मुकाबले। और जो हमने दूसरी मादा दिखाई थी वो गर्म मिजाज की, कैड़े हार्ट की, बंद हड्डी, बंद जोड़ की, उसके मुकाबले इस मादा के काफ़ी चौड़े पर हैं। अगर हम इस मादा को उन्न वाले कबूतर से लगाएंगे तो हमारा 100% जो जोड़ बनेगा वो बाहर के हिसाब का बनेगा, बाहर की छोड़ का, ठीक है जी। लेकिन अगर हमने घर के हिसाब का बनाना है तो फिर आपने किसी भी गर्म मिजाज की आप मादा लगा दें तो आपका जोड़ा एकदम सक्सेसफुल बैठेगा। दूसरे पल्ले का भी शौक करें तो ये बहुत चौड़े परों की मादा है और ठंडे मिजाज की है। हमें पता है कि किस ब्लड लाइन से है, तो इसलिए हम जो है 100% जो है और हैं। लेकिन अगर किसी भाई को नहीं पता है तो इन चीज़ों का ध्यान रखें और आप जो है जोड़ा लगाएं, तो इंशाल्लाह आपको जो है 101% रिजल्ट आएगा, ठीक है दोस्तों। और अगर कोई जानकारी चाहिए जितनी हमें पता है तो हम जो है आपको पूरी जानकारी देंगे। अच्छे बुरे का जो है वो आसमान ही बताता है, अच्छे बुरे का कबूतर का पता नहीं चलता, वो तो आपको उड़ाने से ही तजुर्बा होगा, ठीक है। अगर आपने कहीं से उड़ते हुए कबूतर लिए, सपोज करो 6-7 घंटे 8 घंटे कबूतर उड़ रहे हैं अच्छे मौसम में, वो रिजल्ट दे रहे हैं, लेकिन आपने अगर जोड़ा लगाना है तो वो जोड़े में जो है आपने इन चीज़ों का ही ध्यान रखना है। और कोशिश करें कबूतर जो आप कहीं से भी परचेज करें, ठीक है, उसमें जो है सबसे पहले आपको बैकग्राउंड का पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि दोस्तों गर्मी में जो उड़ती है ना वो ब्लड लाइन ही उड़ती है, रिजल्ट जो देती है वो ब्लड लाइन ही देती है, ठीक है। यूँ तो बैठे हुए सबके काले पंजे मिलेंगे, सबकी आँख नाक अच्छी मिलेगी, सभी खूबसूरत मिलेंगे, लेकिन मैंने बंद हड्डियों के कबूतर जो है दोस्तों 2-2 घंटे भी उड़ते हुए नहीं देखे, लेकिन जोड़ उनके पूरे बंद हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि बंद हड्डी का है तो कबूतर ज़्यादा उड़ेगा। दोस्तों उड़ती तो नस्ल ही है, ये तो सभी को पता है, और नस्ल का जो है पता होना बहुत ज़रूरी है। और जब अगर आप कहीं से कबूतर परचेज कर रहे हैं तो मैं बार बार यही कहूँगा कि बैकग्राउंड का आपको पता होना चाहिए। अगर आपको बैकग्राउंड का पता है तो आपको जो है 100% कामयाबी मिलेगी, आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। अगर आपको बैकग्राउंड का नहीं पता है और आपने कहीं अनजान जगह से कबूतर लिए हैं तो इन सब चीज़ों का ध्यान करके तब आप जोड़ा लगाएं। उमर भाई ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਕਰਵਾ ਲਗੇ ਹੋ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਮਗਰ ਪੁੱਛ ਰਹਾ ਲੋ ਜੀ ਦੋਸਤੋ, ਕਮਗਰ
उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब के जो कबूतर है उनका आपको शौक करवाने लगे। ये दोस्तों ओरिजिनल कमगर कबूतर पहली दफ़ा शो होने लगे हैं मेरे चैनल पे। यहाँ इसका हल्का फुल्का अक्स एक और छत पे है, लेकिन ये असल कमगर कबूतर है। ये आप इनकी आंखें देख सकते हैं माशाल्लाह। ये ओरिजिनल कमगर कबूतर दोस्तों आप देख रहे हैं उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब के। आँख देख लें कैसी शानदार और मैनेज आँख है, बारीक तिल है। रात के 12 बजे हम ये वीडियो बना रहे हैं। ज़मीन देखें कितनी ज़्यादा सफ़ेद है माशाल्लाह। इसकी ज़रा दूसरी आँख दिखाएं। ये दोस्तों दूसरी आँख देखिए माशाल्लाह, क्या शानदार आँख है। आप ओरिजिनल कमगर कबूतर देख रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं इन बातों में। जो रियलिटी है आप वही देख रहे हैं। ये ओरिजिनल कमगर कबूतरों के पर भी देख ले, कलर भी आप देख रहे हैं किस तरह का इन कबूतरों का। दूसरा पर दिखाइएगा इसका। माशाल्लाह जी। ये दोस्तों अपनी असल हालत में ये कबूतर हैं। पल्ले इनके देखें, बड़े लेंथी और शानदार पल्ले हैं माशाल्लाह। ज़रा पूरा कबूतर दिखाओ तो सीधा कर, ये देखें दोस्तों माशाल्लाह। ये देखिए दोस्तों माशाल्लाह, क्या खूबसूरत चमक पलक हर चीज़ पूरी। ज़रा इसकी दूसरी आंख भी दिखाएं। माशाल्लाह जी। ये दोस्तों ओरिजिनल कमगर कबूतर है जिनका आपको इस वक्त शौक करवा रहे हैं, और ये उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब के कबूतर है। दूसरा पर देखिए, ये दोस्तों पर देखें क्या शानदार पर है माशाल्लाह जी। फुल भी दिखाओ माशाल्लाह जी। ये दोस्तों पंजे देखें ज़रा माशाल्लाह। ज़रा फुल भी दिखाओ। ये दोस्तों उस्ताद खान मोहम्मद और दिखा, क्या बात है। दूसरा पर पंजे दिखाएंगे। ये दोस्तों ये उस्ताद खान मोहम्मद बारा साहब के कमगर कबूतर। ये दोस्तों देखिए माशाल्लाह कैसी शानदार आंख है। ज़रा दूसरी आंख भी दिखाओ इसकी।
ये दोस्तों पर देखिएगा माशाल्लाह, ये देखें, ये दोस्तों ओरिजिनल कमगर कबूतरों का आज आपको शौक करवा रहे हैं। ये दोस्तों पर देखें, ओरिजिनल कमगर कबूतर उस्ताद ख़ान मोहम्मद बारा साहब के, जिनका आपको माशाल्लाह माशाल्लाह। ये दोस्तों देखिए एक और बड़ा शानदार कबूतर है माशाल्लाह जी। माशाल्लाह पंजे दिखाएं। ये दोस्तों पंजे देखिए इन कबूतरों के, कैसे खूबसूरत कबूतर हैं, पंजे भी कैसे शानदार। और मुज़बान मोहम्मद बारा साहब के जो मेन कमगर कबूतर हैं उनका आपको शौक करवा रहे हैं। तो अब हमें बताएं आप। ये देखें ना, ये कबूतर का पर देख रहे हैं आप, इसमें 2-3-4 चीज़ों का आपने ख्याल करना है। एक तो इस जगह पे ये जो जगह है ना, जब हम ये पर खोलते हैं ना, ये ऐसे एयर गैप नहीं पैदा होना चाहिए इस जगह पे। ये देखें ना, पर ऊपर ले आया कमर के ऊपर। दूसरा, इसके पर में देखें कोई खला नहीं पैदा हो रहा। ये पर खोल रहे हैं ना हम, और ये शेप मेरी फेवरेट है। ये 3 पर बाहर के ऐसे, ये जैसे 3 उंगलियां हमारी, ये पर। और इसकी टिप्पें देख लें बाहर की ना, ऊपर वाली, ये बड़ी अकाउंट करती हैं, ये शानदार हैं। जो कबूतर ज़्यादा लंबा उड़ेगा उसकी टिप्पें ऐसी होंगी। जितनी गुलाई ज़्यादा बढ़ती जाएगी, प्रवास कम होती जाएगी। और कुंदे की लेंथ देख लें आप, कुंदे की लेंथ भी दराज है इसकी, यानी ये। उसके अलावा इसकी दुम देख लें, और ये इसकी आँख है। ये मेरा बगल पोटा कबूतर है, बड़ा फेवरेट कबूतर है। इसमें एक चीज़ का आपने ख्याल करना है, ये जो इसकी ग्रिप देख रहे हैं ना आप, ग्रिप ऐसी होनी चाहिए। अगर कबूतर की इधर से आँख खुल रही है, अक्सर कबूतरों की खुल जाती है, यहाँ ऐसे ऊपर को खुली हुई है, वो ख़राब है। यहाँ ऐसे पलक नीचे गिरी हुई है, वो भी ख़राब है, वो कबूतर ज़ाया हो जाते हैं। उसका ये इसका पंजा माशाल्लाह। हाँ, और जो अहम चीज़ है, सबसे ज़्यादा कबूतर का मुलायम होना शर्त है। वो पकड़ के हाथ में जब आप पकड़ लें तब आपके पास एक फीलिंग आती है, तो मुलायम होना शर्त है कबूतर का। जी जी। Please subscribe my YouTube channel for more videos and updates.